to host this wonderful evening together, which is a very interactive, rather motivational session with one of the most respected and renowned industrialists of Uttarakhand. Today, we have with us a living legend, I must say, a visionary, energetic industrialist, an enthusiastic entrepreneur, Mr. Shiv Kumar Agrawal. May I take the opportunity to introduce him to you. Mr. Shiv Kumar started his career by setting up a small rice mill way back in the year 1969 in the small town of Rudrapur. Ever since then, he has been struggling, working hard, putting his heart and soul into whatever he did, accepting challenges and everything to carve a niche for himself. 40 years of his sincere endeavor has resulted into incredible success. Today, he is the CMD of Uttarakhand's biggest, maybe India's biggest stone crusher, LSC Infratech. He is a businessman with diversified interests. He is into automobiles, into real estate and industrial gases. It is very important to mention that Mr. Kumar's achievements have been recognized and appreciated by both state and central government. He has been awarded many times. Some prominent achievements are Udyog Ratna in 2005, Kumaon Gaurav in 2007, and one of the most prestigious National Water Award by Union Government in 2018. It is also important to mention that Mr. Kumar has the credit of being the highest income taxpayer in the Commissionerate of Kumaon. Also to mention that throughout his business journey, he has contributed a lot for the betterment of society and environment. He is closely associated with a lot of educational institutes, spiritual organizations and social welfare organizations. Today, he will share his experiences, his philosophy, his ideas and his views on how to live life, in fact how to enjoy life. He is also running a YouTube channel in the name of Enjoy Life Shiv Kumar. So now, without taking much of your time, I would like to invite Mr. Kumar on the stage. नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने परिवार के सारे मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सीनियर्स हैं, जिनका मुझे बहुत सानिध्य मिला है 55 साल में हल्द्वानी से लोकल टाउन। मैं पल्लव भाई का बहुत शुक्रिया कहूँगा कि इन्होंने इतना बढ़िया, इतने फ़ैन हैं ये मेरे। 3-4 साल से हम लोग डायलॉग शुरू हुआ विपासना के परिप्रेक्ष्य से और इंटरेक्शन होता चला गया। विपासना का स्टडी किया। ये वेंट टू बी 2 टाइम विपासना। मैं नहीं जा पाया मगर स्टडी रिसर्च करता रहा मैं और दोस्ती होती चली गई। आज इस मुकाम पे है तो इन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं हापुड़ से एक बिजनेस और फ्रीडम फाइटिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर गांधीवादी थे और 2 अंकल मेरे फादर सबसे बड़े थे 8 भाइयों में और 2 अंकल सुभाष चंद्र बोस के थे, साथ थे। उन्होंने घर के बही खाते ऐसे खुलते थे हनुमान जी की पूंछ की तरह से, उनका बम बनाना फाड़ जाते थे और फर्म के बही खाते थे तो उसमें बाबूराम केदारनाथ फर्म मतलब का आइडेंटिफिकेशन, जस्ट टू टेरराइज, डोंट टू किल एनीबॉडी एल्स। इट वाज जस्ट लाइक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के घर के बाहर कहीं भी ये वो सब, जस्ट टू टेरराइज द गवर्नमेंट रूलर्स। वो फर्म की आइडेंटिफिकेशन हुई बाबूराम केदारनाथ। मेरे फादर गांधीवादी थे, मेरे फादर सबसे बड़े थे, वो और 2 अंकल जेल में रहे, 2 साल जेल में रहे। चौधरी चरण सिंह भी उनके साथ थे और मेरे फादर ड्यू टू मतलब है फैमिली के हेड होने के नाते डिप्रेशन में थे, तो वो डिप्रेशन चरण सिंह उनकी रस्सी पढ़ते थे जो फ्रीडम फाइटर्स की मिलती काम मिलता था।
He used to come on our C.V. Gupta, Archana Singh, usually, and so many all leaders. 1930 में somehow जज साहब ने सजा बियॉन्ड हिज पावर दे दी, छूट गए, नहीं तो कोई के नहीं। जर्नी चलती रही। मैंने अपना बिजनेस, डीएनए होने के नाते मेरी तमन्ना थी एयरफोर्स में जाने की, मगर फैमिली के हालात की वजह से अर्ली बिजनेस को ज्वाइन किया मैंने। आई स्टार्ट माई कैरियर विद माई ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑल ट्रेडिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड अफ्रीकन। 3 साल मैंने किया, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा मेरा सब कुछ। मगर कुदरत ने चक्कर चलाया, अकेले 18 साल की उम्र में आके मैंने कदरपुर राइस में लगाया, क्योंकि राइस की ट्रेडिंग हमारी यहाँ से होती थी, पंजाब हरियाणा से। जर्नी शुरू हुई, 74 में सॉल्वेंट प्लांट लगाया, फिर पीलीभीत लगाया, फॉरेस्ट्री की, ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई, मेडिकल स्टोन क्रेशर लगाया। तो आज सब कुछ जो भी है सब आप लोगों के प्यार और सहयोग से, समाज से, सिस्टम से बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला, उसका मैं लाख लाख शुक्रिया आप सबका। भगवान ने लाखों नियामत, लाखों खुशियाँ। इसमें छोटा सा मेरा परिचय है। माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त, सबका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार। माई लाफ्टर योगा इज लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग खुलकर हंसना भी भूल गए हैं। अगर हंसते भी ऐसे हैं कि जैसे किसी का कर्जा चुका रहे हैं। इस तरह की हंसी के हंसने से सारे लाभ नहीं मिल सकते। जब तक आप दिल से नहीं हंसेंगे तो प्लेजर, दिल और दिमाग को प्लेजर नहीं मिलेगा, दिखावे। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप 7 दिन में बिल्कुल ना हंसें तो आप कमजोर हो जाएंगे और बीमारियों को न्योता दे बैठेंगे। लाफ्टर इज ए लाइफ, लाफ्टर इज ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इट इज एनर्जेटिक है, आपको एनर्जेटिक करता है और आपके माइंड को एंडोर्फिन हार्मोन छोड़ता है, जिससे कि आप पूरा प्लेजर और एनर्जेटिक हो जाते हैं। हंसने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो लोग खुलकर हंसते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि लंग्स की एक्सरसाइज होती है। लंग्स की एक्सरसाइज, और लंग्स से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो हार्ट का पंपिंग से रेड सेल्स सारी दुनिया में सारे 72,000 नसों से टेल तक पहुंचाते हैं। इट इज फुल ऑफ मेडिकल साइंस। रोज 1 मिनट की हंसी से आपका 24 घंटे का इम्यून सिस्टम बिल्टअप होता है। और 1 मिनट के गुस्से से आप 5 घंटे के लिए टुल हो जाते हैं। अगर किसी को 1 मिनट का गुस्सा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम 5 मिनट के लिए आप बीपी और हार्ट की पल्पेशन बढ़ जाएगी। और कोई हल्का सा जोक भी सुनाए तो उसको खुल के हंसना चाहिए। मैं तो लखनऊ जाता था पहले, जब भी स्टेट अलग नहीं थी, तो कुछ दोस्त थे, अभी वो दोस्त आया भी था, तो वो जब मैं जाता था देख के मुझे हंसने लगते थे। एसपी सिंह, एक्साइज ऑफिसर, मैं उसको कहता था, चेहरा भी बहुत मुस्कुराने वाला था। मैं कभी, मैं जोकर थोड़ी है जो देख के हंस रहे हो, जोक तो सुनाता हूँ। तो जोक का सुनाना और हंसना सबसे बड़ा प्लेजर है। वो ऐसी चीज है कि जो सबको हंसा सकता है, खुल के हंसना चाहिए। जोक्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिससे इसके माध्यम से आप बहुत खुल के हंस सकते हैं, यार दोस्त से मिले। उदासी बीमारी है, प्रसन्नता स्वास्थ्य है, मुस्कुराना चेहरे का सर्वोत्तम मुफ्त का श्रृंगार है। हर रोज इतना मुस्कुराइए कि दुख भी कहे मैं कहां फंस गया। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए खूब मुस्कुराएं।
कम से कम 1 मिनट तो हम मुस्कुराएं, जिससे कि 24 घंटे के लिए बिल्टअप रहेंगे। और दूसरों को मुस्कुराने में सहयोग करें, दूसरों को मुस्कुराने में सहयोग करें। जो आदमी खुलकर हंस सकता है वही किसी को हंसा सकता है। जो खुद हंसने वाला है वही किसी को हंसा सकता है। रोने वाले के पास तो कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा, और वो किसको हंसाएगा? इट कांट बी। और ये किसी को, दूसरे को, किसी हक को हंसाना सबसे पहला और बड़ा, समाज के अंदर सबसे पहला और बड़ा पुण्य है कि किसी रोते को, किसी दुखियारी को हंसा देना। जैसे कहते हैं ना, किसी की समस्या अगर आप दिल से और मन से किसी की समस्या सुन लो तो उसकी समस्या 75% खत्म हो जाती है। मन से और दिल से उसकी किसी की समस्या सुन लो, उसके दिल का गुबार निकल जाए तो 75% समस्या दूर हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी को हंसा दो, किसी को हंसा दो तो 75% उसका इम्यून सिस्टम बिल्टअप हो जाएगा। देन ही विल फाइट हिज ओन प्रॉब्लम। जैसे कहते हैं, किसी की दुर्गति पे तरस खाना माननीय है और राहत देना ईश्वरीय है। दुर्गति पे तरस खाना माननीय है और राहत देना ईश्वरीय है। तो वो अपने आप एनर्जेटिक हो जाएगा। जिसको आप हंसा दोगे वो भूल जाएगा सारा दुख दर्द। दिल और ब्रेन उसका पावरफुल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला और बड़ा पुण्य है, जैसे मैंने कहा, दुर्गति पे तरस खाना माननीय, राहत देना ईश्वरीय। तो कैसे किसी को हंसाना है? किसी की मुस्कुराहटों पे, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। मेरी आवाज सबको मिल रही है? वैसे 1000 की ऑडियंस तक विदाउट माइक के पहुंच जाएगी मेरी आवाज। हंसने से आपका दिल खुशगवार हो जाता है, चेहरे पे रौनक आ जाती है, श्रृंगार है, और आपकी मानसिक क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है। बीपी जैसी बीमारी नहीं रहेगी। हंसने से बीपी जैसी बीमारी नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। सारे सिस्टम्स, आपका बॉडी का पूरा सिस्टम, ऑटो सिस्टम है, वो पूरा एनर्जेटिक हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एक अंतरा है, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। 1 2 3 4 दिन में हंसो बार बार। हंसने में क्या जाता है भाई साहब, हंसो ना। 5 6 7 8 सबसे करो हंस के बाद। तो ये बहुत फायदे हैं साहब हंसने के। इसलिए हंसते रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए। लाइफ को लाफ्टर योगा के माध्यम से एंजॉय करते हुए लाइफ में सुख, शांति, स्वस्थ, आनंदित रहे। एंजॉय लाइफ। माय टाइटल इज एंजॉय लाइफ। इससे बढ़िया कोई चीज जिंदगी में नहीं हो सकती। आपने और ही बदल दी। इफ एनीबडी कैन एंजॉयड है तो वो हंसने वाला ही हो सकता है। और आपको ये अच्छा लगे मेरा लाफ्टर योगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को, दूसरों को, सबको सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। देखिए लाइफ में अब मेरे सब बहुत सूरज लोग बैठे हैं, मेरे से बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, मेरे से बहुत एक्सपोजर ज्ञानी बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ज्यादा जानने वाले हैं सब लोग कि पेरेंट्स किसी के चॉइस नहीं हो सकते। मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, इट इज नॉट माई चॉइस। मैं किनका बच्चा होऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स नहीं चॉइस करता। पर जिन्होंने मुझे पैदा किया है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं
उनकी बदौलत मेरा वजूद है, और वो मेरे सबसे पहले और सबसे बड़े इस ब्रह्मांड में देवता है। गणेश जी ने भी सिद्ध कर रखा है, माता और पिता से बड़ा कोई दोस्त, देवता, गुरु दुनिया में कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को रिगार्ड्स पे करता है, सुख देता है, वही सुखी रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता। ये मेरी गारंटी। जिसने अपने माता पिता और उनका कर्जा 7 जन्म नहीं उतार सकता। मां 9 महीने पेट में रखती है, बाप अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपने पूरा। जो भी व्यक्ति अगर अपने मां बाप को रिगार्ड्स, लव और सुख नहीं देगा, वो जिंदगी के 7 जन्म तक सुखी नहीं रह सकता। आई चैलेंज दैट। तो इसलिए पेरेंट्स मेरे चॉइस नहीं हो सकते, बट मैं शुक्रगुजार हूं, उनकी वजह से मेरा वजूद है। लाइफ पार्टनर भी अगर इनमेच्योर लव मैरिज है, अट्रैक्शन की मैरिज है, तो आप खड्डे में हैं। और 100 रिश्तेदारों ने अरेंज मैरिज करके धक्का दिया तो आप खड्डे में हैं। बट इट इज ए फुल ऑफ लाइफ, इज ए फ्लेक्सिबल सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइजिंग। क्योंकि लव मैरिज, लव की परिभाषा प्रभुपाद जी ने दे रखी है कि प्रभुपाद जी से पूछा अमेरिका में, साहब आपके कृष्ण की 16,000 गोपिकाओं से लव की डेफिनेशन क्या है? उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा। वो ऑडियंस बढ़ती चलेगी। जब कथा कर रहे थे तो एक दिन स्टेज से भाग खड़े हुए, सारी ऑडियंस उनके पीछे 500 मीटर जाके रुक गए। उन्होंने कहा, पूछा अभी मेरे पीछे क्यों आए हो आप? कि हमें आपसे लव हो गया है। बट कृष्ण का लव यही था। लव इज नॉट ए सेक्स। लव तो आप लव, दोस्त, गुरु, देवता इज माई लाइकिंग चॉइस पर। आफ्टर नोइंग द ऑल इज ऑल वन बास्केट। दवाई भी दोस्त है। इट इज योर चॉइस, इट इज नॉट ए कंपल्सन। लाइकिंग है। आफ्टर नोइंग द मेरिट्स, डीमेरिट्स, मैं उसका दोस्त। तो लाइफ पार्टनर इज नॉट चॉइस, इज अ फ्लेक्सिबल सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइज। इफ इट इज रियल लव है, वहां डाइवोर्स कैसे हो जाएगा? लव इज नॉट ए फॉर ए बॉडी, दो फ्रीक्वेंसी है। आफ्टर नोइंग द अवगुण, दोस्ती भी है लव में, और देवता, इट इज माई चॉइस। आई हैव सेलेक्ट माई एसोसिएट एंड फ्रेंडशिप एंड लाइफ पार्टनर एंड एनी। बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, बस जीने की चॉइस में किसी का कंपल्सन नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने जिंदगी में डॉक्टर बनना है, कारखाने लगाने हैं, बिजनेस करने हैं, इंसानियत से जीना है, राक्षस प्रवृत्ति से जीना है, अधार्मिक जीना है, सामाजिक जीना है, जैसी जीना है, दैट इज योर चॉइस। हाउ यू एंजॉय योर जर्नी, इन विच फ्रीक्वेंसी, इट इज योर चॉइस। गलत फहमी किसी को ये है इट इज नॉट चॉइस, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। 2 स्टोरी है बड़े मजेदार। एक राजा था और सेक्रेटरी भी दोस्त होता है, उसका महामंत्री था, दोस्त भी हो जाता है महामंत्री, सेक्रेटरी महामंत्री। तो राजा साहब एक दिन तलवार में, क्योंकि आदमी को अपनी कुछ चीजें ऐसी तो खुद ही पैनी करने में मजा आता है। जैसे पेंसिल बनाने में मजा आता है, पेंसिल के साथ किसी को प्रेस करने में खुद मजा आता है। तो राजा फाइटर है, हेड ऑफ द स्टेट है, उसको फाइटर होना ही होगा। तो तलवार तेज करे तो तलवार गिर के उंगली पे गिर गई, कट गई उंगली। मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा बोला, साला मेरा महामंत्री और मेरा दोस्त, मतलब साला, मतलब मेरा खून निकला, दर्द हो रहा, साला कह रहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। कभी कह रहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा बहुत अच्छा जेल में चला गया। इट इज ए लेसन कि हाउ टू बी पॉजिटिव। कुछ दिन बाद राजा साहब शिकार करने गए। राजाओं को कुछ काम तो था ही नहीं, कारखाने चलाने नहीं, प्रोफेशनल है, ऑडिट तो करने ही नहीं, बैलेंस शीट का उन्होंने नीरज की तरह से राशि डाल। राजा को, प्रजा का काम है राजा को खुश रखना, और वो भी जरूरी कि राजा खुश रहेगा, सही डिसीजन लेगा। जैसे फौज में कहते हैं, फौज में एक दिन डिस्कशन हो रहा था, सब ये ऐश याशी बहुत करते हैं। मैंने कहा ये ऐश याशी नहीं करेंगे तो फौज में फ्रंट पे जाकर मार नहीं सकते किसी को। अगर कॉम्प्लेटेड रहेंगे, डेफिशिएंसी रहेगी लाइफ में, हाउ कैन दे फाइटर? दे मस्ट बी रिचेस्ट इन ए ब्रेन। तो उस तरीके से शिकार पे गए राजा साहब, और शिकार पे करते करते राजा साहब आगे निकल गए तेजस से घोड़े पे,
और सारी सेना सेक्रेटरी पैकेटरी से राजा साहब निकल गए, शिकार तो मिला नहीं। वो आदिवासियों ने पकड़ लिया, हुम्बा 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 हुम्बा। वो खुश हुए कि साहब बलि देंगे, बलि देंगे, राजा की बलि देंगे, बलि देंगे। राजा बोला मैं राजा हूं यहाँ का। नो कहीं हर कोई जो आता है वही सबको राजा ही कहता है अपने आप को। जैसे एक किस्सा ये बड़े मजेदार है। मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जोरहाट जा रहे थे, छोटा सा प्लेन रहा होगा, वो प्लेन खराब हो गया। पायलट ने अपने को सेक्रीफाइस करके प्लेन ऐसे उतारा कि पायलट और शिप का कोड ये है कि वो पहले सारे पैसेंजर बचा और अपने को मारेगा और अपने आप को बाद में बचाएगा। तो वो मोरारजी देसाई हेल्थ की बहुत फिटनेस थे। 75 साल की उम्र में 2 शिप के तार बांध के उन्होंने मतलब ऐसे पास ऑन किया। 75 जैसे JRD टाटा ने 75 साल की उम्र में आफ्टर 50 ईयर्स सिंगल इंजन प्लेन को कराची से वहां चला के लाए और सिंगल पैसेंजर, क्रेज की बात नहीं। तो वो कूद के खड़े हो गए, सब्जियां खाते थे वो भी उबली हुई नहीं और मतलब स्वयं मूत्र करते हैं, बहुत पानी। तो जनता इकट्ठी बोले मैंने यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहा, प्राइम मिनिस्टर कहता है। खैर वो आदिवासियों ने पकड़ लिया राजा साहब को, बलि देंगे बलि देंगे। अब राजा साहब की इकले की हाथ चलती आदिवासियों के सामने, उनको कपड़े उतारे, नहलाया गया, बलि देंगे, बलि चढ़ाने के लिए। वो देखा मतलब है भाई तो खंडित है, मतलब है इसकी तो अंगुली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। राजा साहब की जान छूट गई। आगे सब महल में आए, आती महामंत्री छुड़ाया तो यार तूने कहा था बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। मगर ये बता तेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? तू जेल में तो रहा 6 महीने, तेरे साथ अच्छा जा। नो कहा साहब वो भी बहुत अच्छा हुआ। नो क्यों? नो कहा साहब अगर मुझे जेल में डालते मैं आपके साथ जाता और बलि मेरी चढ़ती, फौज तो रह जानी थी पीछे। रोने से और नेगेटिव सोचने से तो कुछ नहीं होता। एक और स्टोरी है, एक राजा बैंक करप्ट हो गया, जैसे बिजनेस अवेलेबल हो जाते हैं। बैंक करप्ट हो गया, उसकी वाइफ ने कहा कि देखो साहब ऐसा है मेरे पास तो 400 रुपये है और 400 रुपये लीजिए और आप पड़ोस की रियासत में जाइए, वहाँ पर कोई आपको पहचानता नहीं है और अपने आप को रीबिल्ड करो। इट इज़ ए प्रोसेस। बिजनेसमैन का ये होता है, ट्राइबल होता है, माफिया हो जाता है और दूसरी जगह ट्रैवल करके जाता है, मतलब मेहनत करता है, उसकी मान सम्मान नहीं होता, वो जीरो से स्टार्ट करता है। दिस इज ए प्रोसेस। तो उसने वैसे ही किया, और कोई ऑप्शन था नहीं। 400 रुपये लेके चल दिया पड़ोस की रियासत में। रस्ते में जंगल पड़ा, जंगल में एक साधु जी मिल गए। साधु जी को उन्होंने कहा साहब सारी कहानी सुनाई, नमस्कार किया कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने फ्रॉड किया, ये किया, वो किया, मेरी रियासत फेल हो गया, बैंक करप्ट, मुझे ज्ञान दीजिए। साधु ने बोला मैं मुफ्ती में ज्ञान दे रही, 100 रुपये निकाल। उसने 100 रुपये निकाल के दिए। तो साधु साहब ने कहा कि देखो भी पहला जो है ये ज्ञान है कि सामने कोई भी व्यक्ति आए उसको उसके स्टेटस के मुताबिक डील करो। राजा ने कभी और ज्ञान दीजिए, उसने 100 रुपये निकाल। उन्होंने कहा कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, सब और ज्ञान दीजिए। मेरे को भी ऐसे कोई प्यार से आदर मान सम्मान से कोई खाना खिलाए, चाय पिलाए, उसको डिनाई ना करो, उसके मन की भावना को ठेस ना पहुंचाओ। दैट शुड बी एक्सेप्टेड। और ये मैं 40-50 साल से अपने दोस्तों को, ईमानदार दोस्तों को कहता हूँ कि वो आप रिश्वत नहीं है, इट इज ए नजराना शुक्राना मेहनतना, इट इज नॉट ए जबराना डकैती। आप उसकी मन की भावना को ठेस पहुंचाकर उसको पाप कर रहे हैं। ये मैं नजराना शुक्राना मेहनतना भगवान के लब के सबसे स्वेच्छा से, इज नॉट ए कंडीशन, इज नॉट ए बिजनेस। बहुत अच्छा, उनको और ज्ञान दो, 100 रुपये निकाल। उसने कहा एक दफे अगर विश्वास टूट जाए किसी के साथ तो दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम जैसा बेवकूफ थोड़ी, हम तो 10 दफे विश्वास कर लेते हैं। मेरे दोस्त कहते थे तू तो अजमाए को अजमाता है, कर। खल्लास हो गया, गया बड़ा पड़ोस की रियासत में, देखा जनता सारी सड़क के किनारे राजा साहब का स्वागत करने के लिए तैयार, सिर झुकाई खड़ी। उसने पूछा भी क्या बात? मैंने कहा साहब राजा साहब की सवारी निकल रही है, उनके आदर सत्कार में हम खड़े हैं। सिर झुकाए, वो भी खड़ा हो गया। पहला फॉर्मूला अख्तियार करने से जैसी समा हो उसके मुताबिक राजा साहब की सवारी हाथी से आ रही थी। फॉर्चुनेटली राजा साहब की जो हाथी पे थे, जो बैंक करप्ट राजा था, इनकी आंखें चार हो। उस राजा ने देखा यार ये तो मेरा एक्स एम्प्लॉय है। बैंक करप्ट राजा ने कहा ये तो मेरा एक्स एम्प्लॉय है। सीधी इट इज वर्चुअली लाइफ में होता है। वो हाथी से उतरे, उन्होंने पूछा भी कैसे कैसे क्या बात कैसे ऐसे ऐसे ऐसे। वो उसको अपने साथ लेकर महामंत्री बना दिया। फर्स्ट फॉर्मूला सक्सेस हुआ, महामंत्री बना दिया। तो एक दिन वो शहर में इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सदर कोतवाल जो है के साथ उनके
वही होता है, ऑफिस भी कम रहते हैं। राजा की बेटी जो है शी वॉज एंजॉइंग। विंडो से देखा उन्होंने तो उन्होंने अपना शॉल उतारा, विंडो पर टांग दिया जैसे कि कोई दूसरा फेथफुल। और राजा की लड़की ने भी देख लिया, महामंत्री ने देख लिया है। उसने एंटीसिपेशन में अपने पिता को महामंत्री के खिलाफ बहुत भड़का। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने महामंत्री को बुलाया, एक चिट्ठी लिखी, कहा महामंत्री साहब इस चिट्ठी को तेजस्वी घोड़े से पहुंचा के जल्द से जल्द श्रीमंत पहुंचे। राजा का हुक्म था, लेके चल रही तेजस्वी घोड़ा, अरबी घोड़ा लेके चल रही। रस्ते में सदर कोतवाल साहब मिल गए। उन्होंने कहा महामंत्री साहब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई राजा साहब की चिट्ठी देने जा रहा हूं डेस्टिनेशन। उन्होंने कहा आप आइए, इतने मुर्गा शुर्गा 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं आजकल, तो जो है सारे भोग में मिठाई हैं, आप खाइए। उसने नहीं वो मैं देख आता हूँ, आप एनजीओ मत करें। तीसरा फार्मूला उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, 56 भोगों ने स्वीकार कर लिए। सदर कोतवाल चिट्ठी लेके चल रही। वो चिट्ठी जिस आदमी को दी उस चिट्ठी में लिखा था, वो जल्लाद को चिट्ठी थी, जो इस सब चिट्ठी को लेकर उसको सर कलम करके मेरे दरबार में वो लेके आए। जैसी दरबार में सर कलम करके जल्लाद लेके आया, वो लड़की एक्सपोज हो गई। शी एक्सेप्ट हिज पार्ट, शी एक्सेप्ट हिज पार्ट, माई मिस्टेक इज नॉट माई। रोने लगी। जब आदमी बिखर जाता है, राजा साहब ने फिर उनको माफी मांगी, सॉरी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैनेजमेंट कि जो जीने का, जैसे पहले मैंने बताया, ये पेरेंट्स स्टार्ट जर्नी फ्रॉम देयर, योर आपका प्रेजेंस। अब हाउ टू यू स्पिरिचुअल बुक के मुताबिक कैसे एंजॉय करना है, जीवन मिल गया, सब कुछ हो गया, कि आदमी सच बोले। सच में बहुत बड़ी ताकत है। सच बोलने से यहाँ कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। महात्मा गांधी दुनिया को ऐसे नहीं ला दिया, सामने वाले भी बहुत इंप्रेस होता है करेज से, इन्फ्लुएंस कदर करता है कितना। ठीक है, सच के बहुत सारे, सच कहाँ अच्छा है कहाँ झूठ है, मतलब बट इट्स अल्टीमेट, सच इज ए पावर। तो सच बोले और धर्म से कर्म करे। धर्म से कर्म करने का मतलब है कि आपकी मनसा वाचा कर्म से, आपकी मनसा वाचा कर्म से पर्सनल, पब्लिक इन लार्ज, समाज और एनवायरमेंट का अहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा वजूद माँ बाप की वजह से है, और फिर लाइफ की जर्नी का वजूद समाज और एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट नहीं होगा तो मैं ऑक्सीजन कहां से लूंगा? तो वी आर ए सोशल एनिमल। लॉ भी कोई अगर परमिट करे किसी काम को और समाज और एनवायरमेंट के हित में ना हो तो भी ना। दिस इज द धर्म। आरती उतारने, पूजा करनी धर्म नहीं है। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। ऑल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। वो तो कर्म कांड बाकी तो सच बोले, धर्म से कर्म करे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और तीसरा यह है कि जो किसी की मदद के लिए भगवान अपॉर्चुनिटी दे, जो मौका किसी की मदद का मिले, दैट अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को अपने बूते के मुताबिक दैट शुड बी अवेल्ड, दैट अपॉर्चुनिटी शुड अवेल्ड। फिर आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में घंटा बजाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर ऑल स्पिरिचुअल, ईश्वरीय कार्य है। यू आर ईश्वर, आप खुद ईश्वर है। 5F का फंडा है। आप स्पिरिचुअल हो गए, सब कुछ हो गए। अब आप तक 5F का फंडा, दैट इज 5F इज द फिटनेस, फ्रेंड, फैमिली, faith and finance. All spiritual books में the order is this. बस हर एक की प्रायोरिटी अलग है। कोई फाइनेंस के पीछे भाग रहा है, प्रायोरिटी है। कोई फ्रेंड के पीछे भाग रहा है, कोई फैमिली के पीछे भाग रहा है, कोई ब्रांडिंग में। फिटनेस का मतलब पहली बात तो बॉडी का नहीं है डॉले बनाना। फिटनेस का मतलब है बॉडी, माइंड, सोल और मोस्ट सोशल, स्पिरिचुअल। देन आप स्वस्थ। जापान में एवरेज लाइफ 100 साल की है और एक टापू है ओकिनावा, 30 साल में मैं जानता हूँ, वहाँ 124 साल की उम्र है। वो कर्म करते हैं, एक्टिव रहते हैं टिल डेथ, नो रिटायरमेंट। और मोस्ट सोशल, बस स्पिरिचुअल। तो बेसिकली फिटनेस फर्स्ट क्यों है? मैंने कहा बॉडी, माइंड, सोल एंड मोस्ट सोशल एंड स्पिरिचुअल, देन आप स्वस्थ हैं। फिटनेस के बिगड़ बाकी सब बेकार है। उंगली में दर्द हो जाएगा, वही सब चैन खत्म। अगर आप फिट नहीं है, यू कांट एंजॉय योर लाइफ। हाउ कैन यू एंजॉय एनीथिंग? स्मॉल सिकनेस, इज इट पॉसिबल?
सर दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत छोटी छोटी भी कोई बीमारी नहीं है। तो फिटनेस में जब आप फिट होंगे, फिटनेस की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, हर चीज अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बट स्मॉल आज जब आप फिट होंगे तो यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटी फ्रॉम टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी, अदरवाइज यू कांट। एम आई राइट? So fitness is a must. First, why friend is a second instead of family? Friend is a need और friend is a deed. Friend फिर वही आता है, friend आपकी liking choice variety है. Liking choice variety आपको knowing the each marriage or demarriage. I love you, I like you. ये choice मैंने की है. Family relation तो मैंने कहा जैसे खट्टे में है. It is by default. Can't be it. लव इट इज नॉट लाइकिंग। फ्रेंड वो जो वक्त पे काम आए। तो फ्रेंड जो है चाणक्य ने, अब मैंने फ्रेंड पल्लव को बनाया है, ये मेरी चॉइस है और सिमिलर स्विंग्स टू बी सिमिलर वैकेंसी में 45, 55, 50, 55, 40, 60 भी होगी उससे। तो पल्लव के दोस्त भी वैसे ही होंगे। कहते हैं ना पर्सन नोन बाय द सोसाइटी, सोसाइटी में एक पर्सन परफेक्ट, सिमिलर फ्रेगनेंस सीम्स टू बी और ये टू वे, बट अकाउंटिंग नहीं है, बट अट्रैक्शन इज ए टू वे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फ्रेंडशिप, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। तो फ्रेंड जो है बाप बेटा, हस्बैंड वाइफ, भाई भाई, अगर फ्रेंड है, फ्रेंड की डेफिनेशन में क्वालिफाई करते हैं, देन इट्स ओके, अदरवाइज फैमिली। तो चाणक्य ने बहुत बड़ी एग्जांपल दी है कि जो मेरा दोस्त है पल्लव, इसके जो भी दोस्त हैं वैसे होंगे, वो मेरा 100 गुना दोस्त, और जो पल्लव के दुश्मन है और पल्लव का कोई टास्क है, वो मेरा 1000 गुना। By the grace of God, I am a richest and luckiest. आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला, I am richest and this I have overcome and I am enjoying. तो फ्रेंडशिप में 2 एग्जांपल हैं। अभी मैं रिसेंटली मैं भी एंजॉय, बहुत कोटेशन है। I am a richest and luckiest in the universe. फ्रेंड की 2 कोटेशन है, फ्रेंड की बहुत एग्जांपल हैं। कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन, कर्ण दुर्योधन, after knowing the marriage agreement, these are the example. करोड़ों को ये पता होते हुए भी कि मतलब है ये पापी है और हार इसकी होगी, मगर उसने दोस्ती निभाई। अपनी माँ से कहा तूने तो मेरे साथ वो किया कॉम्प्लेक्स में, बट ये वादा कर दो तेरे 5 के 5 पुत्र हैं। अभी मैं रिसेंटली लखनऊ गया, एक डीसीपी छोटा भाई उसके घर पर 3 दिन रहा डीसीपी हाउस में। 5-6 दुखियारे थे, किसी के 5 करोड़, किसी 10 करोड़, सबके काम लेके गया, उसको मेडिटेशन योगा सिखाने गया था। आई टेल यू, मैंने एक ऋषि भी भेजा सिखाने, उसको मैंने 7 मिनट में सब आसन में उसको खर्राटे ला दी, 7 मिनट। वो कह रहा भाई साहब मैं नींद की तो प्रॉब्लम, इतना वर्क को लेके इतना इंटेलेक्चुअल, इतनी बड़ी किताब के बारे में 5, 7, 10 आदमी, एक के घर में आग लगी, सब लोग दोस्त रिश्तेदार सब आए, जो सारी दुनिया सोशल, वो सोशल फ्रेंड है। रियल फ्रेंड तो वो है जो डेफिनेशन चाणक्य ने कही है, और बहुत एग्जांपल्स हैं, बाकी तो सब सोशल फ्रेंड्स हैं। अभी एक सज्जन ने कहा मेरे को, बहुत बड़ा सोमदत्त बेटर का साथ दोस्त वो हैं जो दुख में रोने आते हैं और सुख में भंगड़ा डालते हैं। मैं दोनों दोस्त हैं, दुख में तो वो हाजिरी लगाने आए और सुख में भंगड़ा डालने अपॉर्चुनिटी को कैश करने आए। दे आर नॉट द रियल फ्रेंड। रियल फ्रेंड तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम रिचेस्ट, जैसे मैंने कहा भगवान राम तो समुद्र को थ्रेड करके मुझे रास्ता देने को सुखा दूंगा। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए हमेशा पानी में आग लगाई और मेरे दोस्तों के लिए लगाई। आई एंजॉय लॉट, स्ट्रगल्स को एंजॉय किया और प्रभु से प्रार्थना की मेरे दोस्त में टेस्ट में फेल होने का मौका मत दियो। अभी तक तो उसने दिया नहीं है और मरते दम तक ये प्रार्थना है कि दोस्त के टेस्ट में फेल होने का मौका मत दियो। कम टू द पॉइंट, उसके घर में आग लगी, सब लोग आए, अफसोस किया, चाय वाय पी, चले गए। एक रियल फ्रेंड आया नीरज शारदा के साथ, मैं क्या भाई साहब क्या हुआ, क्या क्या जला है? तो शिव कहने को कुछ सब कुछ जल गया, मैं ही बचाऊं। तो नीरज ने गले लगा, हमारा गया ही क्या है? तो दिस इज द रियल फैक्ट डेफिनेशन। एक दिन एसपी सिंह जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 3 साल हो गए, बहुत जॉली है, बहुत गुड़ खान है, आई टेल यू। उसके रिटायरमेंट के बाद भी 10 उसने रेफरेंस दिए
4-5 डीएम को मिला मैं जाके, रेड कार्पेट, रिटायरमेंट बाद कौन पूछता है उसके लिए, तो रियल डेफिनेशन फरीक उसके दोस्त का रिटर्न कर। वो 3-4 दिन में उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, रोते हुआ उससे बोल रहा था, अरे भैया हार्ट का ऑपरेशन हो गया। मैं कहा मर क्यों रहा है, साले दिल जवानों को नहीं शादी कर। हंसने लगा, बोले तुम नहीं हंसाया है। मैं कहा साले और रोना लेंगे थोड़ी मतलब है, दिल जवान हो गया तेरा। खैर दोस्ती की परिभाषा एक कोटेशन दी मैंने, दूसरी एक कोटेशन है कि बाप बेटों में कंपटीशन था, बोले कि तेरे दोस्त सच्चे मेरे दोस्त सच्चे। तो उसमें बाप ने कहा पहले तू ही अपने दोस्त से बजमा ले भाई। उसने 5-6 दोस्तों को टेलीफोन मिलाया, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई कह रहा मेरा रेस्क्यू जॉइंट सॉरी ये वो बिस्कुल हैंड ऑफिस। बाप का नंबर था। तो शिव कुमारी रात को 2 बजे पल्लव के घर गए, 2 बजे, पल्लव भैया उठ, पल्लव भैया उठ, कुंडा खुटकाना, तुम कॉल बैक होगी, पल्लव भैया उठ, पल्लव भैया उठ। और बोला भाई साहब आए, शिव कुमारी आए, समथिंग 2 बजे आए, इमरजेंसी कुछ होगी। तो पल्लव भैया एक हाथ में ब्रीफकेस नोटों का बराबर, एक हाथ में तलवार। बोले भाई साहब ये रात का 2 बजे इमरजेंसी 2 ही हो सकती है, या तो पैसे की जरूरत है ये पकड़ो, और कहीं झगड़ा हुआ तो मैं चलता हूं। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ चाणक्य फाइनेंशियल। दवाई भी दोस्त है जो इंस्टेंट लिख दे, देवता जो देता है कुछ, जो प्यार दे, ज्ञान दे, गुण दे, जो आपको एक्सपीरियंस दे वो भी देवता है, जो आपके साथ ठगी करे वो भी दोस्त है। एक्सपीरियंस दे रहा है ना, तो दोस्त की परिभाषा ये है। तो इसलिए दोस्त की इंपॉर्टेंस बताई फैमिली से ऊपर मैंने, और फ्रेंड से ऊपर फिटनेस की। फिटनेस देन फ्रेंड। जब 2 चीजें अच्छी होंगी तो फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभाएंगे आप, बहुत बढ़िया निभाएंगे। क्यों सर? फिर दुनिया आप पे वेट करेगी। अब जब चारों चीजें आपके सरस्वती को फॉलो करोगे तो लक्ष्मी जी तो आपको आशीर्वाद दे ही देंगे फाइनल, वो तो आप कर ही लेंगे। कितना कम हो, कितनी जरूरत है, कहां ले जाओगे, पैसे की भी जरूरत, एक सीमा के बाद। तो ये है, 1-2 जोक सुनाता हूं। एक डुप्लीकेट टकसाल में रात को फर्मा गलत लग गया, 15 रुपए का नोट छप गया, और बड़ी मुश्किल से, तो मतलब ऐसे तो कई साल में अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारे सिस्टम को मैनेज करके भी आज रात को नोट छापेंगे, तो वो भी उल्टा छप गया। किसी सारा मैनेजमेंट का अमेरिका को, रशिया को, भैया अटैक मत कर देना, नोट छाप रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो छप गया। देखा सुबह, देखा भाई गड़बड़ होगी, कभी जला दो कर। तो एक आदमी बोला जो गांव में रूलर्स में देर में पहुंचती है, वहां चला के देख लो, चल जाती हूँ। तो एक आदमी लेके गया गांव में ट्रायल के लिए, चलाने के लिए। उसने बनिए से लाला से कहा भी लाला 1 रुपए के चने दे। लाला ने चने तोड़ दिए 1 रुपए के। उसने 15 का नोट दिया। कोई वैसे तो एक्सचेंज करता नहीं लाला, बिना सौदे लिए, कोई तो इंटरेस्ट हो। उसने 15 का नोट दिया, लाला ने 2 दफा पलटा कर लिया, में डाला, उसने 7-7 के 2 दे दिए। तो 7-7 में 2 दे दिए। एक नाव में नाविक चला रहे थे, तो साधु बैठ गए। अब हम लोगों को बातचीत करने का शौक रहता है। साधु जी बोले, भाई नाविक ये बताओ रामायण पढ़ी है ना? मैं तो तेरा तो नरक बेकार जी नहीं। मैं तो तूने गीता पढ़ी है ना जी? मैं बेकार। वेद पढ़े हैं ना जी? अब तेरा सत्यानाश। कुरान पढ़ी है ना जी? अब वो झल्ला गया, नाविक झल्ला गया। रोज हाँ बेचारा रोटी कमाई है, किताबें पढ़े। क्योंकि वैरायटी तो हर चीज की है, कभी पैसे की भी वैरायटी, इट इज वैरायटी हैज टू बी चेंज, इट कांट बी ऑर्डर, इट इज समय देश काल से मिले। मेरी भी वैरायटी चेंज हुई। मेरा 72 किलो से वजन 108 किलो हो गया, हाथी जैसा गंडा हो गया। पहले रोटी कमानी थी बच्चों के लिए, मतलब या कसरत ही करते थे, योगा ही करते रहते। इट इज वैरायटी हैज टू बी चेंज। उसने नाविक ने पूछा उनसे नाविक ने पूछा, यस ये है भाई साहब, आपके नूर जो है ना चेहरे पे, सच देखा ना, हमसे सबसे ज्यादा चेहरा ग्लो कैसे कर रहा है? साइटेशन कि साहब ऐसा है, आपको तैरना आता है? ना
नौकर जी नाव में छेद हो गया, तुम्हारा तो जिंदगी खत्म। मेरा तो जीना वो कह रहा था, मगर तुम्हारी तो जिंदगी खत्म। है ना। एक बड़े मजेदार, पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी, हम सब लोगों ने ट्रैवल किया है, और एम्बेसडर की बायोग्राफी मैं लिख रहा हूँ, अभी स्पीच दे दी उसको करेक्ट करेंगे। एम्बेसडर की पूरा उस बायोग्राफी से लेके को पढ़ के आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, आप गाड़ी बना सकते हैं। रात दिन चलते थे, टायर वायर की कमजोर होते, टेक्नोलॉजी नॉलेज पैसा इतना होता नहीं था, 100% से जाकर 150% टायर जब बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा तभी छोड़ेंगे उसकी जान। आज तो कहते 70% पे छोड़ के उसको रिप्लेस कर लो, क्यों टायर पंचर हो गया, रात का समय था, सड़कें भी 3-5 फुट की होती थी, ढाल होता था मट्टी में मतलब है, और टायर बदल रहा बेचारा, वो चारों नट उसके जो है खड्डे में गिर गए। और प्रैक्टिकली होता भी था सर, ढूंढते थे टायरों को, रात को टॉर्च काम ये होते थे, दिनों लौट के जाते थे, परेशान फैमिली बैठी उसकी मतलब गाड़ी में, रात का समय चोर डकैत रहे हैं। वो पड़ोस में पागल खाना था, उसकी विंडो से एक पागल देख रहा था, अभी लाला शिव कुमार बहुत परेशान। फैमिली नहीं, पागल ने सोचा लाला शिव कुमार कि परेशान है बेचारे, फैमिली है, ये है वो है। उन्होंने कहा कि भी एक काम कर, बाकी तीनों पहियों में से एक नट खोल के इसमें लगा ले, बाकी तीनों पहियों में से खोल के शिव कुमार ऐसा कर, एक एक नट इनमें 3 दिन हो जाएंगे, समाचारों में मंजिल पहुंच जाएगा। अब लाला शिव कुमार देख रहे इसको, यार ये पागल है। बोला मैं पागल हूं, बेवकूफ नहीं हूं। आपके बिजनेस के 5 पार्टनर हैं, क्योंकि व्यापार से ही आप मतलब है, व्यापार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, और कुछ भूखे पेट भजे ना गोपाला, ये ले अपनी घंटी वाला। मगर मुझे तो प्रभु ने कुछ भी नहीं समझने का, कभी मतलब पैसे के लिए, कभी कुछ मेरे सुनो 1986 मनी इज नॉट नो मनी, कभी सब लोगों ने पहला पार्टनर है, क्योंकि बनिया होता था, बनिया क्या पहले व्यापार में देखता था, जो मुनीम जी होते थे उसकी इज्जत लाला से ज्यादा होती थी, क्योंकि सारे ऑपरेशंस को वही देख रहा है ना, बिजनेस को वही देख रहा है, लाला तो सिर्फ गाइडलाइन दे रहा है, मॉनिटरी सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेशन सारे A to Z मुनीम ही करते हैं, प्रॉफिट भी लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहला पार्टनर आपका आपकी टीम है, आपका जो स्टाफ है, he and she is a first professional business partner, is not an employee। जितना बेस्ट टेक केयर करेंगे आप उसको, उसके सुख दुख को देखेंगे, आपकी टीम, आपका स्टाफ, आपका प्रोफेशनल, मैच जीतने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी ना, then you can only win the match, achieve the task, am I right? He and she that take care of should, you are a father of a team, you are a father, तो वो ओनरशिप से काम करेगी, सक्सेस होगी। तो सबसे पहले आपकी टीम है, उसको जितना बेस्ट टेक केयर करेंगे, नॉट ओनली प्रोफेशनली, पर्सनली भी। आपकी टेक्नोलॉजी ये होनी चाहिए कि आपकी टीम को, आपके ग्राहक को और आपके दोस्त को कोई उंगली उठा के ना देखे, आंख उठा के ना देखे, देन यू विल प्रोफेशनल बी एंजॉयिंग। दूसरा पार्टनर है बैंक, जो आपको पैसे देता है, आपके स्टेक पे पैसे देता है, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। आपने टीम बना ली, बिजनेस को मनी पावर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी मैन मशीन मैनेजमेंट, मनी इज द फर्स्ट, जो स्टेक पे लगाते हैं। और तीसरा पार्टनर है माननीय कस्टमर, क्योंकि उसी का कस्टमर की वैसे ही मतलब प्रॉफिट आएगा ना। आपने संस्था बना ली, खड़ा कर लिया, अब उसको चला प्रॉफिट में लाने के लिए माननीय कस्टमर, गॉड है, भगवान है, देवता है, हर युग में उसको कहा बॉस, उसको बॉस कहा।
उसके बगैर प्रॉफिट नहीं है। आप दुकान बना ली, चला ली, कारखाना लगा ली, सब कुछ है, प्रॉफिट नहीं तो नथिंग। प्रॉफिट तो गैराज से आएगा ना, माने नहीं कसम। अभी एक दफा मैं बैंक में बैठा हुआ था, चीफ जनरल मैनेजर थे, 4 जनरल मैनेजर, चांस की बात है प्रॉपर्टी रिलीज कराने गया था। 1-1.5 घंटा मतलब बात होती रही। 1 घंटा बाद उनके आप ब्याज से देते नहीं, मैं कभी ट्रेन थोड़ी करके ले जाऊँ पैसा तुम्हारा, मैं फ्रॉड करके पैसा लूँ आपसे, ट्रेन करके चला जाऊँ, मतलब है आई कांट डू दैट। फिर वो बातें 1 घंटा होती नहीं, ये आया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा माननीय आपके लिए, आपने एक के लिए लगाया है। मैं कहा तुम्हारा माननीय मैं हूं, तुम्हारा माननीय ग्राहक मैं हूं। तो तीसरा पार्टनर आपका ग्राहक है, चौथा पार्टनर है भाई साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस पर भी बहुत पंत साहब की और रणरंजन सिंह साहब ने भी जो बताया वो स्टोरी बहुत बढ़िया है, बाद में कभी बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट द स्टोरी, क्योंकि वो घर बैठे माइनॉरिटी का पार्टनर है आपका, और घर बैठे भगवान जी को अगरबत्ती लगा रहा है। शिव कुमार को इस साल 1 करोड़ बचा तो मुझे 30 लाख आए, अगले साल प्रभु शिव कुमार को 10 करोड़ बचे, मुझे 3 करोड़ आए। अदरवाइज माइनॉरिटी का पार्टनर हम सब बिजनेसमैन है, भाई हो या बाप हो, 1 पैसे का पार्टनर भी कह देता है यार आज मूड नहीं शिव कुमार दुकान खोलने का, कल सारा कल मूड गई तो है, मगर वो माइनॉरिटी का पार्टनर होते हुए घर में आकर भी लगा रहा विदाउट इंटरफेरेंस के, आपकी दुआएं दे रहा घर बैठे कि आपके प्रॉफिट के लिए। और 5वां पार्टनर जितना कमाओ भैया उस मैक्सिमम जितना सोसाइटी में लगाओ, चैरिटी में लगाओ। अभी मैं सब्जेक्ट पाऊंगा, कहां ले जाओगे? एक सीमा के बाद किसी की 5,000 की, किसी की 50,000 की, किसी की 5 लाख की, किसी की 50 लाख की नहीं हुई। उसके बाद तो सारा जमीन जायदाद समाज की है, कोई ले गया है। अगर किसी ने अधर्म से कमाई करी है तो उसके तो अलग रास्ते हैं, सड़क पे आ जाएगा, जेल में चला जाएगा, भगवान जी के चला जाएगा या अस्पताल में चढ़ के मिलेगा। मगर धर्म से भी कमाई करके ले कहां जाओगे? अगर कोई ले जाए तो भैया मैं भी नीरज से कहूँगा यार 50 करोड़ की एफडी मैं ले लूंगा वहां से, वहां उसके कर्म ही जाएंगे। एक ने पूछा भाई ये बताओ, राजा ने पूछा कि ये बताओ मैं स्वर्ग में जाने के लिए धन दौलत कैसे ले जाऊंगा? उसने कहा साहब ऐसा है, वही बात है, धन तो आपके घर तक छोड़ देगा, फैमिली आपको शमशान घाट तक, कर्म ही जाएंगे। जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर्म में करो वो साचेलम तक आपको साहब। अभी मैं जापान, उसका कितना डेवलप, हिरोशिमा के बाद कितना डेवलप, 2 चीजें देखिए। और मैं अब ओकिनावा की बताई, सारी मतलब 100 साल की बताई, फुल्ली मतलब है। और दुनिया बहुत डेवलप है। दुनिया जो है साहब बहुत विकसित है। क्यों विकसित है? डेवलप है, ह्यूमरस है, एंजॉइंग लाइफ। वो अहिंसा परमो धर्म पे चलते हैं। What I can do for you। यहां तो आपके बारे में बताइए हम सब क्या करते हैं। जापान में कहते हैं मैं जिंदा हूं इसलिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया। यहाँ शिव कुमार जी कहते हैं सबको और दे दे, और दे दे, कुछ देता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये नहीं देता, वो नहीं करता। ग्रेवेंसी। एक मैंने बायोग्राफी अपने डॉग की लिखी है, उसके मरने के 22 साल बाद लिखा, अब तो 25 साल हो गए होंगे। अगर कोई पैट लवर होगा तो मैं उसको भेज दूंगा, उसकी बायोग्राफी लिखी है। जो पैट लवर होगा, रेणुका जी होंगी, हैं नहीं है तो जो भी हैं वो उसको पढ़ के फेंट हो जाएगा। उसके मरने के 20 साल, अब तो लिखे हुए तो 5 साल भी हो गए, 25 साल हो गए होंगे। इस ईयर में डेथ हुई इसकी 95 आई में, यस 95-6 है ना, राइट 6 तो भी 24 साल, यस 7-8 में मालूम, मतलब 25 साल हो गए। अभी मैं एम्बेसी की बायोग्राफी लिखी, अपने फ्रेंडों की बायोग्राफी लिखूंगा। जो पैट लवर होगा उसी को अच्छा लगेगा। और इसके बारे में हमको तो हमारे किसी दोस्त ने दिया और हम समझते थे जो है ये लासा एप्सो है, मगर विंग कमांडर हरीश राय ने दी, उन्होंने बाद में सिल्की सिडनी है, सिल्की सिडनी
इसकी खासियत पढ़ के मतलब पैट लवर फैंट हो जाएगा। तो मैं 3-4 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। पार्वती करोला जी आई होंगी यहाँ पे, मैंने उनको बुलाया, मेरे मेहमान है वो। आइए मैडम। मैंने जो लिफाफे दिए हैं उसमें मेरे विजिटिंग कार्ड भी हैं और उसमें मैंने डेटा भी मांगा है आपसे अपने बर्थडे और एनिवर्सरी का, प्लस पार्वती करोला जी का। मैडम ये पार्वती करोला जी हैं, आपके हल्द्वानी की हैं, कैंसर पेशेंट हैं और ये गरीब बच्चों के, जो बच्चे भी जिनके पेरेंट्स बिल्कुल गरीब हैं, बीपीएल करके इनकी संस्था है, इनका स्लिप मैंने डाली है उसमें कार्ड में, लिफाफे में। 100 बच्चों को अपने घर पर पढ़ाती हैं, सब कुछ खर्चा, खाना पीना, मास्टर, ट्यूशन वोशन सब कराती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। बहुत मतलब जो है बहुत ही अच्छा, क्योंकि सबसे पहले 3-4 ही काम है सोसाइटी में, रोगी को निरोगी करना, एजुकेशन एंड रोजगार। ऑर्डर में यही है। एक ब्लाइंड स्कूल है, ध्यानी साहब आए हैं? ध्यानी साहब, अरे ध्यानी साहब आइए ना, आप छुप के क्यों बैठे हो? ध्यानी साहब हैं साहब, आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा सेटअप, इतना बढ़िया ये ब्लाइंड स्कूल, 100 ब्लाइंड बच्चों को, 100 बच्चों को, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए 100 बच्चों को ब्लाइंड गर्ल्स और बॉयज पढ़ा रहे हैं। किस्तें आ रही हैं मेरे दोस्तों की? नहीं किस्तें आ रही है, नहीं आ रही है? हड़काता रहता हूं मैं, किस्तें आ रही नहीं आ रही हैं? नहीं आ ध्यानी साहब हैं, आपके शहर के ही हैं, ब्लाइंड स्कूल चला रहे हैं काफी टाइम से, बहुत बड़ा, काफी बड़ा। और सब तीसरी एक संस्था है यहाँ पे, और 2 से भी मैं जुड़ा हूँ, ओल्ड एज होम है डिसेबल्स का, इसमें डमुआ में वो अपने घर में 50-60 डिसेबल्स को, और एक मोती नगर में है मदर टेरेसा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वो भी डिसेबल्स, मदर टेरेसा। एक सबसे बड़ी संस्था है साहब वहां पर भरतपुर में, एक संस्था है साहब, आप में बहुत सीनियर्स ने एक पिक्चर देखी होगी, अवतार, राजेश खन्ना और शबाना आजमी। उसमें ये था कि बच्चे को बिल्टा, सारी उम्र आदमी, हर आदमी अपने बच्चों के लिए सारी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है, सब कुछ नछावर कर देता है। बच्चों की शादी भी बड़े बड़े घराने में हो जाती है, बहुएं आ जाती हैं, और वो माँ बाप को सब कुछ, माँ बाप को धोखा देते हैं, सब लूट खसोट कर लेते हैं। फिर दोबारा से वो राजेश खन्ना ने वर्क उसकी होती थी, उनकी गैराज होता था, मगर उन्होंने फिर दोबारा से रिसर्च की और कार्बोरेटर, नया कार्बोरेटर बना दिया, इंजन में लगता है, और बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। वो बेटे बहू सड़क पे आ गए, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर सचिन करके उसका साथी होता था, जो वक्त पे आपके साथ दे, जो वक्त पे साथ दे, सुख और दुख में साथ करे, वो दिस द रियल लाइफ। आपकी 2 ही लाइफ है, फिटनेस और फ्रेंड, बाकी सब घास कुड़ा। तो मेरा मानना यह है साहब, ये 3 जैसे एग्जाम्पल मैंने दी, असली मंदिर ये है, देवता इनमें बसते हैं। अगर देवता देखना हो तो इन 3 जगह, बीपीएल संस्था, ब्लाइंड और डिसेबल्स। जब 3 चीजें ठीक हो जाएंगी तो रोजगार तो कर ही लेगा वो। दुनिया में 200 साल की संस्थाएं चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी चलती हैं, 99.999% सारा वो चैरिटी में लगाते हैं। मेरे से ज्यादा आप सब जानते हैं, समाज में लगाते हैं। तो रियल टेम्पल ये है, और भगवान यहां बसते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पर्ची डाली है, जो भी है जुड़ना चाहे इनके साथ जुड़े। कैसा?
थैंक यू, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें। स्टोरीज दी हैं लोगों को, टिप्स दी हैं, तो क्या है इसका मोटिव, क्या है और क्या आगे कैसे कर रहे हैं? इसका मोटिव यह है कि जो आपके पास जैसा भी टूटा फूटा ज्ञान है सबको शेयर करिए। अगर किसको अच्छा लगेगा, कुछ को तो अच्छा लगेगा और कुछ लोग तो फायदा उठाएंगे उसका। तो इसको यहाँ आपने हल्द्वानी में शेयर किया, इसको कहाँ शेयर करते हैं आप? कहीं भी, अब कहीं भी करेंगे, बहुत काफी जगह किया है। यहाँ पल्लव भैया ने ऑर्गेनाइज किया। आई एम रेडी टू एनीवेयर, कहीं भी जा सकता हूँ। जो भी मेरे तजुर्बों का, ज्ञान का शेयरिंग लेते हुए फायदा उठाना चाहें, लाइफ को एंजॉय करना चाहें, आई एम रेडी फॉर टू डू दैट। 2-3 टिप्स तो काफी मैंने दिए कि फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रेंड इज इन लाइफ, और सामाजिक और धार्मिक और न्यायिक ही काम करे, और समाज और एनवायरनमेंट से आपका वजूद है, उसी से देश का बिल्टअप है। लॉबी परमिट करे और समाज एनवायरनमेंट के हित में काम ना हो, ना करे। जो मौका किसी की मदद का मिले, दैट शुड बी अवेल्ड। फिर आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।